Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss a very important chapter of SYJC OCM, which is called Business Services. This chapter carries maximum weightage of marks in SYJC OCM board paper. Let's start. We start with introduction. Business service help in successful running of a business. It supports both business as well as customers. Which are the business services? They are banking, transport, insurance, warehousing and communication. Let's start one by one. First, warehousing. What do you mean by the term warehousing? Warehousing means storage of goods in a godown or a warehouse. आज के ज़माने में there is a time gap between production and consumption. So till the suitable demand arises, warehousing is essential to store the goods. Warehousing creates both time utility and place utility, as well as it helps in price stabilization of goods. The very first question of warehousing is functions of warehousing. There are 7 points relating to the term functions of warehousing. The first function is risk bearing. जब गुड्स स्टोर किया जाता है वेयरहाउस में तो रिस्क इज ऑटोमेटिकली पास्ड ऑन टू द वेयरहाउस कीपर. तो अब अगर वेयरहाउस में रखे गुड्स को लॉस या डैमेज होता है तो द लॉस विल बी बोर्न बाय द वेयरहाउस कीपर. So the first function of warehousing is risk bearing. That means the risk is transferred from the owner of the goods to the warehouse keeper once the goods are stored in the warehouse. Second, time and place utility. Warehouse creates time utility by preserving the goods when it is not required and delivering the goods as and when the need arises. B part, place utility, by providing the goods at the place where they are required. So this was the second function. Third, grading and packing. Warehouses provides facilities of packing, processing and grading of goods as per the requirements of the owner. Fourth, storage of goods. It is the basic function of warehouses to store the goods from the time of their production till the time of their use or consumption. Fifth, protection of goods. Warehouses protect करता है goods को from loss, damage due to heat, dust, wind, etc. according to their nature. Warehousing reduces wastage and spoilage of goods during storage. Sixth function, processing. Certain commodities require करता है processing to make them consumable. Example, fruits are ripened, timber is seasoned, paddy is polished. Warehouses undertake these activities on behalf of the owners. और आखिरी function of warehousing है financing. जब कोई ओनर ऑफ द गुड्स वेयरहाउस में गुड स्टोर करता है तो वेयरहाउस कीपर उसको एक रिसीप्ट इश्यू करता है. वो रिसीप्ट एक एक्नॉलेजमेंट है कि ये ओनर ने गुड्स हमारे गोडाउन में स्टोर किया हुआ है. लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स स्टोर्ड. तो इससे बिजनेसमैन को मदद मिलता है टू ऑब्टेन फाइनेंस फॉर मीटिंग द बिजनेस ऑपरेशंस. मतलब आपने वेयर हाउस में माल स्टोर किया है, आपको रसीद मिला है, वो रसीद आप सिक्योरिटी तरीके से बैंक में जमा कर सकते हो और उसके बदले में लोन ले सकते हो. तो ये थे 7 फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस. There are 7 types of warehouses. First, public warehouses. ये प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ टू द जनरल पब्लिक फॉर पेमेंट ऑफ सर्टन फीस. मतलब कुछ फीस चार्ज करते हैं फॉर स्टोरेज फैसिलिटी. दे आर ओन्ड बाय आइदर इंडिविजुअल्स और फर्म्स और बाय कंपनीज एक्सेट्रा. They obtain license from the government from time to time and work as per the rules and regulations of the government.
They are located near railway stations, highways, seaports, airports, etc. दूसरा है प्राइवेट वेयर हाउस। नाम से ही पता चल जाता है कि दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय बिग मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स टू स्टोर देयर ओन गुड्स। ये जनरल पब्लिक के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बिग बिजनेस फर्म्स need large storage capacity on a regular and continuous basis, hence they construct warehouses either near their factories or industry for their own convenience. तीसरा है गवर्नमेंट वेयर हाउस। ये नाम से ही पता चल जाता है कि दे आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये छोटे छोटे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए सूटेबल है जिनके लिए डिफ़िकल्ट होता है खुद का वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट करने का और गुड्स को स्टोर करने का। गवर्नमेंट कुछ नॉमिनल चार्जेस लेवी करता है फॉर स्टोरिंग द गुड्स। सर एग्जांपल दो ना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, ये तीन बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑफ गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट वेयर हाउस है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। ये छोटे क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। ये वेयर हाउसेस स्टोर एंड प्रिजर्व करता है केवल और केवल पेरिशेबल गुड्स जैसा कि मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, फिश एक्सेट्रा। इसमें गुड्स आर स्टोर्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर टू प्रिजर्व देयर क्वालिटी एंड फ्रेशनेस। These warehouses ensure continuous and regular supply of seasonal and perishable products like mangoes, green peas, etc. throughout the year. Fifth, cooperative warehouses. नाम से ही पता चल जाता है कि they are owned, managed and controlled by cooperative societies. They are situated mainly in rural areas और ये यूज़फुल है फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, स्पेशली फार्मर्स। दे चार्ज मोस्ट इकोनॉमिकल रेट टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो टू द पब्लिक फॉर प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। सिक्स्थ एंड सेवेंथ, बॉन्डेड एंड ड्यूटी पेड वेयर हाउस। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था बॉन्डेड वर्सेस ड्यूटी पेड वेयर हाउस। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ रिफर दैट पर्टिकुलर वीडियो। अब हम लोग आते हैं दूसरा बिजनेस सर्विसेज जिसका नाम है बैंकिंग। Let us start with the second business service called banking. क्या है बैंक? A bank is a financial institution which deals in money. बैंक लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट्स लेता है और कस्टमर्स को मनी लेंड करता है अगेंस्ट अ सर्टन रेट जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। सर क्या डेफिनेशन है बैंक का? कमर्शियल बैंक का क्या डेफिनेशन है? According to Banking Regulation Act 1949, I repeat, according to Banking Regulation Act 1949, a commercial bank is defined as accepting for the purpose of lending of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, withdrawable by check, draft, ऑर्डर और अदरवाइज। ये डेफिनेशन थोड़ा टफ है, जम्बलिंग है, तो ये आपको 3 बार रट्टा मारना पड़ेगा तो आपके समझ में आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन ऑफ कमर्शियल बैंक, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सर कहते हैं कि देर आर 2 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, प्राइमरी और बैंकिंग फंक्शन, सेकेंडरी और नॉन बैंकिंग फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला 2 अगर आपने याद रखा तो काफ़ी है। सर कौन सा है वो 2 प्राइमरी फंक्शन? चलो हम उनको क्लासीफाई 2 में करेंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स,
बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है थ्रू वेरियस अकाउंट्स। सर कौन से अकाउंट्स है? फर्स्ट, करंट अकाउंट। ये हम लोग ने डिस्टिंग्विश बिटवीन के सेशन में किया था, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये हम लोग दोबारा करेंगे। करंट अकाउंट इज़ ओपन बाय ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। करंट अकाउंट इज़ ओपन इन द नेम ऑफ फर्म्स, बिजनेस ओनली। ये पर्सनल नाम पे ओपन नहीं किया जाता है। चेक बुक, पेन स्लिप बुक इज़ गिवन फॉर विड्रॉवल्स एंड डिपॉजिट्स ऑफ मनी। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन आइदर डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स। चूँकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है टू करंट अकाउंट होल्डर। हाँ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है टू करंट अकाउंट होल्डर। बैंक इम्पोज करता है सर्टन अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दिस अकाउंट। कभी कभी बैंक कुछ सर्विस चार्जेस इम्पोज करती है टू करंट अकाउंट होल्डर्स टू ऑपरेट दिस अकाउंट। दूसरा, सेविंग्स अकाउंट। सर सेविंग्स अकाउंट कौन ओपन करता है? सैलरीड पीपल या फिक्स इनकम पीपल? सेविंग्स अकाउंट इज़ ओपनड इन द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। पर्सनल नाम पे खोला जाता है, फर्म के नाम पे नहीं खोला जाता है। सेविंग्स अकाउंट होल्डर को चेक बुक, पेन स्लिप बुक, पासबुक दिया जाता है। सेविंग्स अकाउंट होल्डर को रेस्ट्रिक्शंस है ऑन विड्रॉवल्स। यूजुअली कहते हैं ट्वाइस अ वीक वो विड्रॉ कर सकता है। चूँकि उसे रेस्ट्रिक्शन है ऑन विड्रॉवल्स, तो उसे नॉमिनल इंटरेस्ट बैंक पे करती है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यूजुअली 4% पर एनम। हाँ, इनको कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी नहीं जाती है। थर्ड, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये वो लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास सरप्लस फंड्स है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इज़ गिवन टू द डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर पैसा डिपॉजिट करता है उसको बैंक एफडी का रिसिप्ट इश्यू करती है। जब तक पीरियड समाप्त नहीं होता है, ये जो फिक्स डिपॉजिट होल्डर जो है वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। हाँ, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे हाई इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक। कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाती है। इंस्टेड बैंक उसके अगेंस्ट में लोन दे सकती है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट, लेकिन ये लोन का अमाउंट विल बी मैक्सिमम 90% ऑफ द डिपॉजिटेड मनी। मैच्योरिटी के समय डिपॉजिट होल्डर को वो सरेंडर करना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट और बैंक उसको मनी रिफंड करेगी या रीपे करेगी। फोर्थ है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट किसके लिए सूटेबल है? ये उन लोगों के लिए है जो पैसा रेगुलरली सेव कर सकते हैं अप टू अ फिक्स पीरियड। इट इज़ सूटेबल फॉर पीपल हु वांट अ लमसम इन फ्यूचर, ताकि वो अपने बच्चे का पढ़ाई करा सके, बेटी का शादी करा सके, स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस एक्सेट्रा। उन लोगों के लिए सूटेबल है। सर इसका पीरियड कितना होता है? मिनिमम 1 साल के लिए आप ओपन कर सकते हो, मैक्सिमम 10 साल के लिए। ये ओपन करना हो तो आप 5-5 रुपया या मल्टीपल्स ऑफ 5 रुपये के द्वारा आप ओपन कर सकते हो, जो आप रेगुलरली सेव करना चाहते हो। इसका इंटरेस्ट विल बी पेड आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड। डिपॉजिट मनी मैच्योरिटी पीरियड के पहले आपको वापस मिलना नहीं है, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको लोन दिया जाएगा अप टू 90% ऑफ द डिपॉजिटेड मनी। तो ये थे 4 प्रकार के अकाउंट्स जिसको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कहते हैं। अब दूसरा प्राइमरी फंक्शन, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक डिपॉजिट का पैसा आइडल नहीं रखता है, क्योंकि बैंक को डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो बैंक ये पैसे को यूटिलाइज करता है बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडिविजुअल्स एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर बाय अर्न्स प्रॉफिट। सर जरा बताओ ना किस तरीके से बैंक लोन्स एंड एडवांस देता है? इसमें सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट। ये आपको छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। ओवरड्राफ्ट वो फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है।
ये ऐसा अरेंजमेंट है जहां विड्रॉवल्स होता है इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट्स अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होती है जिसके अगेंस्ट में बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट। ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये दी जाती है आइदर अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द करंट अकाउंट होल्डर। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ध्यान में रखना, ये ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है, दैट इज 6 मंथ्स के लिए होती है। सेकंड, लोन्स। सर, लोन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके द्वारा बैंक पैसा एडवांस करता है फॉर अ फिक्स पीरियड। लोन्स केवल और केवल कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में दी जाती है। वो कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? स्टॉक, प्रॉपर्टी, मशीनरी एक्सेट्रा। लोन्स 3 प्रकार के होते हैं। एक शॉर्ट पीरियड जो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है, जो आपका टेम्पररी जो नीड्स है या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं। मीडियम टर्म होता है अप टू 5 ईयर्स, काहे के लिए? क्योंकि आपको एसेट मशीनरी रिप्लेस करना होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स होता है 5 ईयर्स से ज़्यादा अप टू 12 ईयर्स। ये किसके लिए दिया जाता है? फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, फॉर बाइंग परमानेंट कैपिटल एक्सेट्रा। हाँ, लोन्स में या तो लमसम आपको पे किया जाएगा इन कैश, या आपका लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा और उस अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द लोन अमाउंट सैंक्शन बाय द बैंक। तीसरा है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक अरेंजमेंट है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अगर कैश क्रेडिट की फैसिलिटी अगर कस्टमर को चाहिए तो बैंक ओपन्स अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड कैश क्रेडिट अकाउंट, और वो पैसा कैश क्रेडिट का जो पैसा है उस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा एंड द कस्टमर कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम दिस अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। Interest will be charged on the amount which he has withdrawn from the bank and not on the cash credit which is provided by the bank. एग्जाम्पल, अगर बैंक ने 1 लाख का सीसी पास किया है और कस्टमर ने केवल 70,000 रुपया ही अवेल किया है, विड्रॉ किया है, तो उसे इंटरेस्ट केवल 70,000 पे लगेगा, 1 लाख पे लगेगा नहीं। हाँ, ये भी चूँकि एक लोन है तो इट इज़ प्रोवाइडेड अगेंस्ट कोलैटरल सिक्योरिटी। उसके बाद चौथा है डिस्काउंटिंग बिल्स। आजकल आपको मालूम है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर। तो क्रेडिटर हैज़ टू ड्रॉ अ बिल ऑन डेटर। ये पेएबल होता है एट अ लेटर डेट। मतलब आज मैंने अगर किसी को माल दिया है क्रेडिट पे तो मैं बिल ड्रॉ करूँगा ऑन द बायर, जिसको हम डेटर कहते हैं, जिसमें बायर प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको फ्यूचर डेट पे पेमेंट करेगा। बट बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड मुझे पैसे की आवश्यकता है, क्रेडिटर को पैसे की आवश्यकता है, तो ही कैन अप्रोच द बैंक एंड गेट द बिल डिस्काउंटेड। अब बैंक इसमें करेगा क्या? बैंक इसमें अमाउंट पे करेगा आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट, मतलब डिस्काउंट काट के उसको पैसा देगा। मैच्योरिटी होने के बाद बैंक डेटर के घर पे जाएगा पैसा कलेक्ट करने के लिए। बट इफ़ डेटर फेल्स टू पे टू द बैंक तो बैंक कलेक्ट करेगा फ्रॉम द क्रेडिटर, क्योंकि उसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है। उसके बाद है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन ये तीसरा फंक्शन है, तीसरा फंक्शन प्राइमरी। क्रेडिट क्रिएशन क्या है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में एक शख्स है जिसका नाम है मिस्टर विनय। विनय ने 100 रुपया डिपॉजिट किया हमारे बैंक में। तो हमारा बैंक अभी विनय का ये जो 100 रुपीज़ है इसको आइडल रखेगा नहीं। क्यों आइडल नहीं रखेगा? क्योंकि ये 100 रुपये पे हमको विनय को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो बैंक 10% रिजर्व में रखेगा, यानी 100 रुपये का 10% इज़ इक्वल टू 10 रुपीज़।
वो 10 रुपये रिजर्व में रख के 90% यानी 90 रुपया अब बैंक लोन तरीके देगा किसी और इंडिविजुअल को। लेकिन वो 90 रुपया वो जिस व्यक्ति को लोन तरीके दिया है उसको कैश में नहीं देकर उसका एक अकाउंट, लोन अकाउंट ओपन करके उसमें क्रेडिट किया जाएगा। यानी ये 90 रुपया बाहर न जाकर वापस आता है बैंक के पास। अब 90 रुपया आ गया तो इसका 10% वापस बैंक क्या करेगा, रिजर्व में रखेगा और 81 रुपीज़ कोई थर्ड आदमी को लोन तरीके देगा। वापस उसमें भी कैश नहीं देकर एक सेपरेट अकाउंट में पैसा जमा किया जाएगा और ये प्रोसेस चलते जाएगा जब तक के वैल्यू डिमिनिश होके 0 रुपीज़ तक नहीं आता है। और फाइनली जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो जो मिस्टर विनय का 100 रुपया था वो मल्टीप्लाई होकर 1000 रुपया में कन्वर्ट हुआ। उसमें से 100 रुपया एक्चुअल कैश है और 900 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट मनी है। तो इस तरीके से बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। और चौथा है प्रमोट यूज़ ऑफ चेक्स। आज बैंकों ने चेक्स इंट्रोड्यूस किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज ये एकदम पॉपुलर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है एंड दे आर यूज्ड इन सेटलमेंट ऑफ डेट्स। तो ये थे आपके 4 प्राइमरी फंक्शन: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, क्रेडिट क्रिएशन एंड प्रमोट यूज़ ऑफ चेक्स। अब आते हैं दूसरा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसे नॉन बैंकिंग फंक्शन कहते हैं। मतलब ये बैंकों के लिए कंपलसरी नहीं है। ये बैंक्स इसीलिए प्रोवाइड करते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। इसमें 2 हैं। एक है एजेंसी फंक्शन। इसमें बैंक कस्टमर का एजेंट बन के क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसमें पहला है बैंक पीरियोडिकल पेमेंट्स करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जैसा कि इंश्योरेंस प्रीमियम, पर्सनल टैक्सेस, बिजली के बिल एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड डेबिट देयर अकाउंट। दूसरा, बैंक पेमेंट रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, जैसा कि पेंशन क्लेम्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर एंड क्रेडिट देयर अकाउंट। बैंक खरीदता और बेचता है सोना, चांदी एंड अदर सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स अगेंस्ट सम चार्जेस। बैंक ट्रस्टी तरीके से विल एग्जीक्यूट करता है ऑफ डिसीस्ड, मतलब जो आदमी मर जाता है उसका विल एग्जीक्यूट करता है एज अ ट्रस्टी। उसके बाद बैंक फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंट करता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। दूसरा नॉन बैंकिंग फंक्शन है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसमें सबसे पहला है कि कमर्शियल बैंक्स सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो अपने वैल्यूबल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बैंक कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड फाइनेंस और उसको पीरियोडिकली पब्लिश करता है, दैट इज़ दे एडवाइस देयर कस्टमर्स। बैंक प्रोवाइड करता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी सो एज टू मेक एंड कलेक्ट इजी पेमेंट। बैंक इश्यू करता है ट्रेवलर्स चेक टू द कस्टमर्स टू अवॉइड द रिस्क ऑफ कैरिंग लिक्विड कैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आजकल बैंकों ने गिफ्ट चेक्स इंट्रोड्यूस किया है और वो इश्यू करता है टू कस्टमर्स विच कैन बी यूज्ड बाय देम ऑन वेरियस ओकेशंस एंड सिचुएशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैंक्स पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बैंक्स। कौन से टाइप्स ऑफ बैंक्स है? इसमें आप पहला और दूसरा हमने ऑलरेडी डिस्टिंग्विश बिटवीन में किया हुआ है, लेकिन ये आपके जानकारी के लिए फिर करते हैं। पहला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट पास एट द पार्लियामेंट। RBI is the central bank of the country. It is established under RBI Act 1934. I repeat, RBI Act
1934 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है। आरबीआई या सेंट्रल बैंक कभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस कमर्शियल बैंक की तरह परफॉर्म नहीं करता है। सर, इसका मेन एम है टू प्रोवाइड सर्विस, इट इज़ नॉट मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट लाइक कमर्शियल बैंक। ये डिस्टिंग्विश में काम आएगा। सर, ये करेंसी नोट्स इशू करता है। सर, ये कंट्रोलिंग बैंक है, इसको मदर ऑफ ऑल द बैंक्स कहते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और पॉलिसी गाइडलाइंस फ्रेम करता है जो सब बैंकों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसके कस्टमर्स है कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। दूसरा है कमर्शियल बैंक्स। दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934। कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये परफॉर्म करते प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। इनका मेन मकसद है प्रॉफिट मोटिव। सर, दे आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। सर, इसके कस्टमर्स है इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स, कॉरपोरेट्स एक्सेट्रा। ये क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, क्रेडिट मनी जनरेट करते बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। याद रखना, वो एग्जाम्पल मिस्टर विनय, और हमारी बैंक ने विनय से 100 रुपया लिया था। तीसरा, कोऑपरेटिव बैंक्स। सर, ये वो बैंक है जो 2 एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये 3 टायर सिस्टम के तहत वर्क करता है। सबसे पहला एट विलेज लेवल, दूसरा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीसरा एट स्टेट लेवल। विलेज लेवल पे होता है प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सेंट्रल, और स्टेट लेवल पे होता है स्टेट। तो मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एट विलेज लेवल, सेंट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एट स्टेट लेवल। सर, अगर आपको ये कोऑपरेटिव बैंकों से पैसा अवेल करना है, क्रेडिट अवेल करना है, तो आपको इनके शेयर सब्सक्राइब करने होंगे, परचेज करने होंगे और मेंबरशिप लेनी होगी। Cooperatives also provide primary and secondary functions to attract more customers. They offer high rate of interest compared to commercial banks. They are more popular in rural areas rather than in urban areas. अब चौथा वाला लेस इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल बैंक्स। नाम से ही पता चलता है कि दे आर फाउंड इन विलेजेस टू प्रमोट एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये लोग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स टू फार्मर्स। ये लोग फार्मर्स को हेल्प करते हैं टू परचेज ट्यूब वेल्स, टू बाय ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, हार्वेस्टर्स, सीड्स एक्सेट्रा। इन टर्न इनको मदद मिलता है फ्रॉम आरबीआई, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चरल बैंक्स। ये किसानों को बहुत कम ब्याज दर पे लोन देते हैं एंड रिलीव्स देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। पांचवा प्रकार का बैंक है इंडस्ट्रियल बैंक। ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को मदद करता है। सर, एग्जाम्पल दो ना। सर, एग्जाम्पल है आईडीबीआई। सर, एग्जाम्पल और दो ना, आईएफसीआई, सिडबी। आईडीबीआई का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन लोगों, ये जो बैंक है, इनको पैसा कहाँ से आता है? फ्रॉम थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बोरोइंग्स करके ये लोग पैसा जमा करते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं।
सर ये इंडस्ट्रीज़ को पैसा कैसे देते हैं? बाय एनकरेजिंग न्यू यूनिट्स, बाय अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एंड बाय प्रोवाइडिंग टर्म लोन्स। अब इसके बाद आता है फॉरेन बैंक्स। नाम से ही पता चल जाता है कि ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। नाम से ही पता चल जाता है कि ये लोग एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को मदद प्रोवाइड करते हैं। सर ये किस तरीके से मदद देते हैं? ये लोग इश्यू करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट सर क्या है? एक इंपोर्टर को बाय करना है गुड्स फ्रॉम जैपनीज़ एक्सपोर्टर। जैपनीज़ एक्सपोर्टर तब तक माल एक्सपोर्ट नहीं करेगा जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं मिलता है कि मुझे पेमेंट मिलने वाला है। तो इंपोर्टर अपने बैंक को कहेगा कि आप जैपनीज़ एक्सपोर्टर के नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट बना के भेज दीजिए। ये बैंक गारंटी देता है जैपनीज़ एक्सपोर्टर को कि मैं तुझे पेमेंट करूँगा जब तू माल भेजेगा। तो उसके बाद डिस्काउंटिंग फॉरेन बिल्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज, सोना चांदी एक्सेट्रा, एंड फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इस तरीके से प्रमोट करते हैं ये फॉरेन बैंक्स। सर एग्जाम्पल दो ना। मर्केंटाइल बैंक, ग्रिंडलेस बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सब एग्जाम्पल्स है फॉरेन बैंक्स के। सर एट प्रेजेंट तो इंडियन बैंकों ने अपने ब्रांचेस खोले हुए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, एंड देयर दे आर परफॉर्मिंग एज फॉरेन बैंक्स। इंडिजिनस बैंक्स। सर ये इंडिजिनस बैंक्स क्या है? इंडिजिनस बैंक्स वो है जो आपको गांव में मिलेंगे या डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगे, शहरों में बहुत कम मिलेंगे। ये होते कौन है? मनी लेंडर्स एंड साहूकार्स। ये लोग डिपॉजिट लेते हैं और लोन्स देते हैं नीडी पीपल को। ये लोग बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये लोग लोन्स बिना सिक्योरिटी के दे देते हैं और ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं द इलिटरेट एंड इग्नोरेंट पीपल ऑफ रूरल एरियाज। कम्युनिटीज़ लाइक मारवाड़ीज़ एंड मुल्तानीज़ आज भी पॉपुलर है रूरल एरियाज़ में। आठवां और आखिरी बैंक है कंज्यूमर्स बैंक। ये नया कंसेप्ट है, मोस्टली आपको अर्बन एरियाज़ या डेवलप कंट्रीज़ में मिलेगा। इनका ऑब्जेक्ट है कंज्यूमर्स को लोन देने का ताकि वो लोग ड्यूरेबल्स खरीद सके। ड्यूरेबल्स मतलब वो कमोडिटी जिसकी लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ होती है। आपने सुना होगा लोन पे फ़ोन। लोन पे फ़ोन मतलब आपको अगर एप्पल का फ़ोन लेना है 1.5 लाख का, आपके पास कैश नहीं है, आप चले जाइए कोई भी मोबाइल स्टोर में, वहाँ पे बैंक का कोई बंदा होगा, वो आपको लोन पे फ़ोन दिलाने में मदद करेगा। कंज्यूमर्स हैव टू रीपे इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ बैंक्स। अब हम लोग आते हैं और एक बिजनेस सर्विस जिसका नाम है इंश्योरेंस। आपको तो पता ही है कि ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ आर सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसे मिनिमाइज अवश्य कर सकते हैं। किसके द्वारा? इंश्योरेंस के द्वारा। ये है क्या इंश्योरेंस? अरे एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है इंश्योरेंस? एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक इंश्योरर और दूसरा सामने वाला इंश्योर्ड। इंश्योरर ब्रैकेट इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड मतलब वो व्यक्ति जो इंश्योरेंस निकालता अपने लाइफ का या प्रॉपर्टी का। इंश्योरर कंसिडरेशन लेता है ब्रैकेट प्रीमियम। इन रिटर्न वो प्रॉमिस करता है कि मैच्योरिटी के बाद या कोई घटना घटने के बाद हम आपको इतना लमसम अमाउंट या इतना कॉम्पनसेशन आपको पे करेंगे, या तो पीरियड मैच्योर होने के बाद या तो कोई इवेंट घटने के बाद। सर पहला क्वेश्चन इंश्योरेंस का, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसको अबरीमा फिदाई बोलते हैं। 3 बार बोलूँगा, अबरीमा फिदाई, अबरीमा फिदाई, अबरीमा फिदाई। ये है क्या अबरीमा फिदाई? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। सर ये गुड फेथ क्या है? ये ध्यान में रखिए कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्टीज़ हैं।
एक है इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा है इंश्योर्ड। इसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम तो लेता है, लेकिन सामने वो प्रॉमिस देता है कि भाई आपका नुकसान हुआ तो हम भरपाई करके देंगे। तो इंश्योर्ड की कुछ जिम्मेदारी होती है कि उसको भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए इन गुड फेथ। मतलब जो भी रेलेवेंट या मटीरियल फैक्ट्स है विच आर रिलेटेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो सब डिस्क्लोज करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने कुछ फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और पता चला कि जो फैक्ट उसने डिस्क्लोज नहीं किया और उसके कारण कुछ घटना घटी, तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट लायबल टू कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड। सर एग्जाम्पल दो ना अटमोस्ट गुड फेथ का। एक मिस्टर विनय है, विनय उसने अपने लाइफ का इंश्योरेंस निकाला, प्रीमियम उसने भर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा विनय भाई मैच्योरिटी के बाद हम आपको लमसम पैसा देंगे या उसके पहले आपका मृत्यु हुआ तो हम आपको, आपके परिवार को इतना लमसम पैसा देंगे। चलो ठीक है, लेकिन विनय की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसको कोई इंटरनल डिजीज़ है, हिडन डिजीज़ है और जो बहुत ही डेंजरस है और उसने वो डिस्क्लोज नहीं किया वाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट और पता चला कि विनय का उसी डिजीज़ के कारण मृत्यु हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी नहीं रहती है टू कॉम्पनसेट विनय की फैमिली को, क्योंकि विनय ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था इन अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये ध्यान में रखना कि ये जो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस में भी है, फायर इंश्योरेंस में भी है और मरीन इंश्योरेंस में भी है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड आइदर इन हिज ओन लाइफ और प्रॉपर्टी। सर ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अब मिस्टर विनय ने अपने लाइफ का अगर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला है तो विनय का अपने लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब जब तक विनय जीवित है तब तक उसका जो फैमिली है वो फाइनेंशियली एंड मॉनिटरली सेफ और सिक्योर्ड है। विनय का अगर डेथ हो गया तो विनय वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो उसका फैमिली सफ़र करेगा लॉस, तो उस लॉस के लिए इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करेगा। इसे कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक कार ओनर अपने कार का इंश्योरेंस निकालता है तो उसका अपने कार में इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। एक वाइफ अपने हस्बैंड का इंश्योरेंस निकालती है तो उसका अपने हस्बैंड में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इतना ध्यान में रखना कि लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ओनली, लेकिन फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट न ही होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट बल्कि एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये जो प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल फायर और मरीन इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल है। ये है क्या इंडेमनिटी? अरे इंडेमनिटी का मतलब है कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस। सर लॉस का कॉम्पनसेशन तो लाइफ में भी होता है, लेकिन लाइफ के केस में आप जो लॉस है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। एक आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कितना फाइनेंशियल लॉस होता है ये आप जान नहीं सकते हो या पैसों में आंक सकते नहीं हो। लेकिन मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एक कार ओनर है, उसने अपने कार का इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला, तो कार का इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला और कार को आग लग गई तो क्या होगा?
उसमें अगर आग लग गई तो जो वैल्यू ऑफ लॉस है वो कैलकुलेट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। सर एग्जाम्पल और क्लियर करो ना। मिस्टर विनय इंश्योर्स हिज कार फॉर ₹1,00,000। ओके, इफ द कार मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड द लॉस इज ओनली 50,000, 1,00,000 का पॉलिसी निकाला कार का, 50,000 का नुकसान हुआ, तो नुकसान जितना हुआ इंश्योरेंस कंपनी उसको भर के देगा, तो भर के देगा 50,000 न कि 1,00,000। अगर 1,00,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने दिया तो विनय को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में द लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इन जनरल इंश्योरेंस इट कैन बी कैलकुलेटेड। उसके बाद चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। ये फॉलो करता है इंडेमनिटी को। ये सबरोगेशन क्या है तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा पहले एग्जाम्पल से। अब क्या है, मिस्टर विनय ने इंश्योर किया है अपने घर को 1,00,000 रुपये में, यानी अपने पूरे घर का इंश्योरेंस पॉलिसी 1,00,000 का निकाला। अब विनय का घर डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, लेकिन वो फायर फैलने के पहले अगर 10,000 रुपये का माल सेव किया गया, बचा लिया गया, प्रॉपर्टी बचा ली गई, उसे सैल्वेज कहते। तो 10,000 का सैल्वेज हुआ तो एक्चुअल लॉस तो विनय को 90,000 का हुआ, न कि 1,00,000 का। और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 1,00,000 रुपया पूरा कॉम्पनसेट किया तो अब वो 10,000 रुपये का प्रॉब्लम अराइज होगा, तो 10,000 का जो सैल्वेज है उस पर अधिकार इंश्योरेंस कंपनी का होगा, विनय का होगा नहीं। क्योंकि अगर विनय को वो अधिकार दिया गया तो वापस उसको प्रॉफिट होगा इन दैट लॉस, तो ये उनको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, तो सैल्वेज पे अधिकार होगा इंश्योरेंस कंपनी का। इज इट क्लियर? उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ कोरोलरी टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इट अप्लाइज टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल, अब मिस्टर विनय ने अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला 1,00,000 रुपये का एक इंश्योरेंस कंपनी से और उसको प्रीमियम पे किया। विनय को डर है कि ये इंश्योरेंस कंपनी जब मेरा नुकसान होगा तो हो सकता है मुझे 100% कॉम्पनसेशन ना दे, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए विनय दूसरी कंपनी से भी पॉलिसी निकालता है 1,00,000 रुपये का और उसे भी प्रीमियम भरता है। अब होता ये है कि विनय का वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है और समझ लो कि अगर पहले कंपनी ने उसे 1,00,000 रुपये दिया तो अब विनय को दूसरी कंपनी तो देने वाली नहीं है, क्योंकि विनय का केवल 1,00,000 रुपये का नुकसान हुआ था। अब होगा ये कि जो पहली इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 1,00,000 रुपये दिया है वो दूसरी कंपनी के साथ क्या करेगी? शेयर करेगी द वैल्यू ऑफ लॉस, यानी वो लोग अपना लॉस को मिनिमाइज करेंगे, लेकिन विनय को प्रॉफिट फ्रॉम दैट लॉस अक्रू होने देंगे नहीं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। इसको ब्रैकेट में मिटिगेशन बोलते हैं। इसमें इंश्योर्ड को सब पॉसिबल स्टेप्स लेना चाहिए टू मिनिमाइज द लॉस। यानी वापस एग्जाम्पल वही मिस्टर विनय का आता है जिसने अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला। अब होता यह है कि विनय का प्रॉपर्टी को आग लग गया। आग लगने के समय विनय वहाँ मौजूद था, तो विनय को कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके अपना लॉस को मिनिमाइज कर सके और न कि विनय को ऐसा करना चाहिए टू एक्ट नेग्लिजेंटली या बिहेव इररिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है। ये नहीं कि भाई मेरा प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है तो भले गोडाउन जलता है तो जलने दो, नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मिनिमाइज द लॉस, मिनिमाइज द रिस्क। एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। सर इसका भी ब्रैकेट में है नियरेस्ट कॉज।
क्या होता है, ये कहता है कि जब कोई लॉस अकर होता है कोई इवेंट से और पता चलता है कोई एक इवेंट से लॉस नहीं हुआ है, एक से ज़्यादा इवेंट के कारण लॉस हुआ है, तो इंश्योरर इज़ लायबल फॉर द लॉस ओनली फॉर द नियरेस्ट कॉज, फॉर द नियरेस्ट कॉज एंड नॉट फॉर द फारेस्ट कॉज। मतलब जो रिमोट कॉज है उसके लिए इंश्योरर लायबल होगा नहीं, नियरेस्ट कॉज के लिए लायबल होगा। तो ये थे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब 3 प्रकार के इंश्योरेंस जो हम लोग ने डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत ही बेहतरीन हम लोग ने किया था, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। डिस्टिंग्विश में किया, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए ब्रीफ में कर देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज़ सब्जेक्ट टू रिस्क। रिस्क को हम एलिमिनेट या अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्टीज़ है। अब ध्यान से सुनना, मैं बन जाता हूँ एश्योरर, इंश्योरर नहीं, एश्योरर, और अगला जो सामने वाला बंदा है वो बन जाता है एश्योर्ड। अब ये एश्योरर और एश्योर्ड क्यों है, इंश्योरर और इंश्योर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंश्योरेंस जो होता है वो फायर और मरीन इंश्योरेंस में होता है। लाइफ इंश्योरेंस एक एश्योरेंस है। इसमें होता ये कि इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेता है फ्रॉम एश्योर्ड और उसको कहता है कि हम आपको इतना अमाउंट एश्योर करते हैं, आइदर ऑन मैच्योरिटी और ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, दैट इज डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। एग्जाम्पल, मिस्टर ए इंश्योर्स हिज लाइफ फॉर ₹1 लाख फॉर 10 ईयर्स। अगर वो जिंदा रह पाता है तो अमाउंट विल बी पेड टू हिम, लेकिन अगर मर जाता है इन बिटवीन तो उसके फैमिली को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो पैसा दिया जाएगा। सर इतना ध्यान में रखना, लाइफ इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। 2 प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंडेमनिटी और सब्रोगेशन होता नहीं है, वो जनरल इंश्योरेंस में होता है। फायर इंश्योरेंस, सर फायर इंश्योरेंस क्या है? सर आज धंधे में बहुत प्रकार के रिस्क है, फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा। रिस्क अवॉइड नहीं किया जा सकता है लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है थ्रू इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेकर एग्री करता है कि हम आपका लॉस कॉम्पनसेट करेंगे ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, दैट लॉस मस्ट अकर ड्यू टू फायर, ड्यू टू फायर। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एग्जाम्पल, मिस्टर विनय ने अपने प्रॉपर्टी का 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस निकाला अगेंस्ट फायर, ध्यान में रखना, अगेंस्ट फायर। और अगर विनय का गोडाउन जल गया और 50,000 का नुकसान हुआ तो विनय को कॉम्पनसेशन 50,000 का मिलेगा, न कि 1 लाख का। इसमें 4 प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन। और आखिरी है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 पार्टीज़ है, इंश्योरर, इंश्योर्ड। इंश्योरर प्रीमियम लेकर एग्री करता है टू इंडेमनीफाई द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ड्यू टू डेंजर्स ऑफ सी, मतलब पानी के कारण जो भी नुकसान होगा वो भर के देगा। इसमें 3 प्रिंसिपल्स है, न 4 है न 2 है, 3 है। कौन से 3? अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी। सर सब्रोगेशन क्यों नहीं है? अरे भाई जब नाव डूब गया टाइटैनिक तो अभी कहाँ निकालने बैठोगे पानी के अंदर, जो गए वो लोग भी मर जाते हैं। या तो ये थे 3 प्रकार के इंश्योरेंस। तो अभी तक हम लोग ने किया द फर्स्ट बिजनेस सर्विस, दैट इज वेयर हाउसिंग। दूसरा हमने बिजनेस सर्विस किया जिसका नाम था बैंकिंग। तीसरा हमने बिजनेस सर्विस किया जिसका नाम इंश्योरेंस। अब हम लोग करेंगे चौथा बिजनेस सर्विस जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस बढ़िया किया है डिस्टिंग्विश बिटवीन के द्वारा, लेकिन आपके जानकारी के लिए केवल और केवल
5 से 7 मिनट में ये चारों के बारे में वर्णन देता हूँ। ये आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चारों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए काम आएगा। स्टार्ट करते हैं चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस सर्विस, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। सर, ट्रांसपोर्ट कैरी करता है मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देयर बाय क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। सर, इम्पॉर्टेंस बोलो ना, नीड बोलो ना, बेनिफिट्स बोलो ना सर ट्रांसपोर्ट का। यस, 7 इम्पॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स प्रोडक्शन, यानी ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्रीज एंड देयर बाय हेल्प इन रेगुलर एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सप्लाई करता है गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ एबंडेंस टू द प्लेस ऑफ स्कार्सिटी वेयर दे आर डिमांडेड, may be within the country or from one country to another. तीसरा, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आज इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड या लोकलाइज हो गए बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। आज ट्रांसपोर्ट उन एरियाज में प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, और ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है टू कैरी फिनिश गुड्स फ्रॉम दोज एरियाज टू दोज प्लेसेस वेयर दे आर डिमांडेड। उसके बाद चौथा, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। हाउ? बाय इक्वलाइजिंग बोथ डिमांड एंड सप्लाई। वो फ्लक्चुएशंस वो अवॉइड करता है। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज़। सर, कैलामिटीज़ क्या क्या आते हैं? फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एक्सेट्रा, तब ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है बाय अंडरटेकिंग रेस्क्यू मेजर्स, रिलीफ मेजर्स, ये रिहेबिलिटेशन एक्सेट्रा करने में मदद करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट हेल्प्स करता है इन मोबिलिटी ऑफ लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देयर बाय प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड जनरेट इनकम ऑफ द पीपल। और आखिरी इंपॉर्टेंस है, ट्रांसपोर्ट क्रिएट करता है 2 यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम। याद रखना, वेयर हाउसिंग क्रिएट करता है टाइम एंड प्लेस, उल्टा है। वेयर हाउसिंग में पहले टाइम आएगा बाद में प्लेस, और ट्रांसपोर्ट में पहले प्लेस आएगा बाद में टाइम। ये ऑब्जेक्टिव में आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा। अब 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहला है रोड ट्रांसपोर्ट। सर, क्या है रोड ट्रांसपोर्ट? इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। Sir, what are the means of road transport? Animals, bullock carts, automobiles, bus, trucks, tankers, they carry man and material from one place to another. Road transport helps in development of internal trade, that is, it is suitable within the country. रोड ट्रांसपोर्ट की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। रोड ट्रांसपोर्ट की स्पीड वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। रोड ट्रांसपोर्ट अनसेफ होता है क्योंकि उसमें एक्सीडेंट्स, ब्रेकडाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वो रूट चेंज करता है ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ सूटेबल फॉर लाइट एंड मीडियम वेट गुड्स। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। Road transport is owned and managed by private individuals. Road transport provide करता है personal as well as door to door delivery of goods. Road transport यहाँ तक के suitable है for interiors, remote places, mountainous slopes etc. And sir, road transport is affected by bad weather conditions like heavy floods, fog etc. ये जो रोड ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया है, यह आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में काम आएगा। रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। रेलवे सबसे पहला इंट्रोड्यूस इंडिया में 1853 में हुआ था। रेलवे ट्रांसपोर्ट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे ट्रांसपोर्ट का सर्विसेज आर रेगुलर। रेलवे ट्रांसपोर्ट सूटेबल है फॉर लार्ज एंड बल्की गुड्स। रेलवे ट्रांसपोर्ट लॉन्गर डिस्टेंस के लिए बहुत ही आइडियल है। रेलवे ट्रांसपोर्ट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि सर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइंस, कंस्ट्रक्ट वैगन्स, रेलवे स्टेशंस एक्सेट्रा।
रेलवे ट्रांसपोर्ट आर मच सेफर कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसमें एक्सीडेंट्स का चांसेस कम है। रेलवे ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रेन्स, बैड वेदर कंडीशंस एक्सेट्रा। रेलवे ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबल नहीं है रोड ट्रांसपोर्ट की तरह, रिजिड है, बिकॉज दे रन ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड ट्रैक्स ऑन द ग्राउंड, और ये लोग अपना रूट चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। रेलवे ट्रांसपोर्ट पर्सनल एंड डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं देते, खाली रेलवे स्टेशंस तक डिलीवरी देते हैं। अर्जेंटली नीडेड आइटम्स एंड पेरिशेबल गुड्स आप रेलवे ट्रांसपोर्ट से नहीं कैरी कर सकते हो। रेलवे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग के अलावा अदर मार्केटिंग सर्विस जैसा कि वेइंग, स्टोरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये मार्केटिंग फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तीसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट। कहते हैं इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द स्लोवेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसकी कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ये सूटेबल है फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स, लेकिन ये अनसेफ है ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन जैसा कि स्टॉर्म, साइक्लोन्स, हैवी रेन्स एक्सेट्रा। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो है क्योंकि वो नेचुरल है। इट इज़ सूटेबल फॉर बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये सूटेबल केवल उन्हीं प्लेसेस के लिए जहाँ पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, और ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ टू टाउन्स एंड सिटीज़। विलेज और रिमोट एरियाज़ के लिए सूटेबल नहीं है। और आखिरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। ये सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग एरोड्रम्स, एरोप्लेन्स, जेट्स एक्सेट्रा। इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। ये सूटेबल है फॉर लाइट बट कॉस्टली गुड्स। सर ये सूटेबल है फॉर अर्जेंटली नीडेड आइटम्स। ये मोस्ट सूटेबल है फॉर पेरिशेबल गुड्स बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टेड वेरी क्विकली टू प्रिजर्व देयर फ्रेशनेस एंड क्वालिटी। VIPs और पॉलिटिशियंस अक्सर ये एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्ट सूटेबल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ टू रेस्क्यू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। इट इज़ आइडियल ड्यूरिंग वॉर। लड़ाई के समय एयर ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सूटेबल टू पोज एन अटैक ऑन द एनिमी कंट्री। It is affected by bad weather like rains, low clouds, fog, etc. और ये अनसेफ है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, हाईजैकिंग एक्सेट्रा। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग ने बिजनेस सर्विसेज किए, जिसमें से पहला चीज़ किया वेयर हाउसिंग, दूसरा हमने किया बैंकिंग, तीसरा हमने किया इंश्योरेंस, चौथा हमने किया ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।